academic criteria, but I'm talking in terms of basic criteria through which we can justify that whether a particular solution is a policy solution or not. So first criteria is, uh, I think most of you are aware about it, but many of you, when you talk about policy making, when you talk about new idea to solve a issue, you come up with a plan or uh, idea which is not even executable. So the first nature or first property that it should have is it should be a executable plan or policy. So executable in term of we must have a governance system to support it. We should have enough finance or financial uh, liberty, है ना, to support this policy. At the same time, our constitution must uh, agree with, must be agree, or constitutional compliances must be met. ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें सोचना होता है कि ये सारी चीजें आपके प्लान और पॉलिसी में होनी चाहिए. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑल्सो कि कैसे लोग गलत सोचते हैं कई बार. सेकंड, it should be sustainable. The second, let me write scalable. So, what do you mean by scalable? Can anyone give me a definition or a meaning for scalable? कोई बताओ मुझे. So it should be able to work on all the levels of the nation. Like it should be able to work on the lowest district level and should be able to go up to the national level. So it's not वो कि नेशनल लेवल पे ही हो. स्केलेबल मतलब कि एटलीस्ट को बढ़ाया जा सके. So मतलब it's पूरे not be, उसको. हाँ. So the policy solution should cover the entire geographical area or population, है ना. तो scalability should be a very key feature of that. Third is sustainable. And sustainability, sustainability here doesn't mean that it should be environmental friendly or something else. We are not talking about talking in that term. We are talking in terms that it can work for a longer period of time. It should not be a quick solution. It should be a sustainable solution so that it 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 can stay for a longer period of time. And fourth criteria, it should somehow also be self-sustainable. It's not mandatory, but if it is self-sustainable, then efficacy of that policy or solution would be better. So with self-sustainable, what I'm trying to mean here is that somehow it should generate resources for itself. तुम अभी देखोगे कि इन रिसेंट टाइम्स में पिछले 15-20 सालों में इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है. तो जैसे रोड्स वगैरह बने हुए हैं, एक्सप्रेसवेज और एनएच वगैरह जो बने हैं, तो ये ज़्यादा इसलिए बन पा रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक इट सेल्फ सस्टेनेबल थ्रू व्हाट, थ्रू टोल सिस्टम. तो अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैन चार्ज for every service that they provide, but if every
policy solution, if it is attached with some kind of revenue generation in any way, not just by charging people for the service, maybe they can use the same policy or the same infrastructure for advertisement or some other services to corporate at the same time, and government may serve people with that money. So if this can be done, uh, it would be the policy would stay or would will work more effectively, and it will stay longer, because for every government there is a big problem for any welfare policy or any development policy which they want to bring in, and which is not there or which was not there before. So the major obstacle that a policy maker or government find is the problem of financing it. So finance is an issue. So in these days, whenever you will study policy, this will be also a big question, that how to finance for your policy and how to find uh, how to structure it. Let's go a little deeper for the Indian go. So whenever we make a policy, we need to create a system. System is what? People, place, I mean office and whatever, you know, and technology. So every time whenever a policy is being framed, so government has to provide these, and you cannot bring new people or hire new people or create a new infrastructure for every policy. That you have to get it through present form of your governance, which is already there, and they are already occupied with a number of other policies and other work. So finding governance support is also very important. कई सारी पॉलिसीज जो है सिर्फ इसीलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाई, बिकॉज they could not meet the requirement of manpower through the current governance system. और फिर उसमें क्या होता है, फिर creating a new pool of resource for that policy is not possible, because we don't have that much of amount of money, है ना। और वो भी एक ऐसा भी नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म वो एग्जिस्ट करेगा, तो हम, क्योंकि जब भी आप हायर करते हो तो इट स्टेज देयर फॉर 30 ईयर्स 40 ईयर्स ऐसा करके होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या करती है गवर्नमेंट, कि दे हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग ट्रिपल पी, मतलब प्राइवेट कंपनीज इनटू पॉलिसीज एंड थ्रू पीपीपी मॉडल। तो ये है। अब बहुत बेसिक सी बात मुझे बताओ, ऐसी गलती मुझे नहीं लगता तुम लोग करोगे, क्योंकि तुम लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो। अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, एंड इफ आई एम आस्किंग दैट कम अप विथ सम पॉलिसी सॉल्यूशन फॉर वुमेन सेफ्टी इन सिटीज, है ना, अर्बन एरिया, मतलब लेट से, मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा और उसको नैरो डाउन कर दिया। तो व्हाट आर द पॉलिसी सॉल्यूशन यू विल ब्रिंग हियर फॉर वुमेन सेफ्टी? जरा बताना तुम लोग सोचकर। मैं उस पे फिर बताऊंगा कि हाउ दैट पर्टिकुलर आवर 4 क्राइटेरिया इज being met or not. सर किस स्केल पे? अर्बन एरिया है तो यू कैन टेक a metro as per 1 unit, and same model can be replicated to all other metros. Sir, like in Hyderabad, there is the she teams where like कोई भी कंप्लेंट आता है या अब्यूज का, या कि कोई any complaint on like suspicious behavior of by strangers, you can dial to the तो ये सी टीम जो है, अब इस पॉलिसी के लिए जो किस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया गया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का, yeah है ना। एंड इट, हाँ हाँ, तो इट इज एग्जीक्यूटेबल, आई अंडरस्टूड।
क्योंकि हम्म आपने सी टीम बना दिया, हर थाने में एक एक जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टाफ है उसी में से एक हाँ, को। फीमेल कॉन्स्टेबल्स और फीमेल हाँ, जो और होते फिर हैं। आपने रिस्पांस टीम को एक बता दिया कि इसको प्रायोरिटी पे रखना है ना। हाँ। तो ये आपने कर दिया। ये एग्जीक्यूटिबल है, हम्म बट इज इट सस्टेनेबल? हाँ, it's like it's oh, more than a decade. It's sustaining in Hyderabad. Like हाँ सारे ठीक है। जो भी like नाइट शिफ्ट पे फीमेल्स जाते हैं वर्क पे, उनको यूज हो रहा है। दे ऑल्सो हम्म रन बसेस ऑल्सो नाइट शिफ्ट में, जो वर्क को जाते आते हैं उनके लिए हम्म। पब्लिक बसेस। और व्हाट अबाउट इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है? हाँ, मोस्टली लाइक वो मेट्रो सिटीज में भी ज्यादा लाइक मोर पॉपुलेटेड एरियाज में इफेक्टिव है, आउटस्कर्ट्स में उतना इफेक्टिव नहीं है। अभी भी आउटस्कर्ट्स में क्राइम हो रही है, बट इट्स लाइक मोर लाइक जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज है वहां पे ये सब इफेक्टिव है। So in effectiveness, I have one take. In such a situation, ये थोड़ा retrospective care नहीं हो गया that once it is reported, only then it can probably because I don't know much about the sheeting. Only then they can address this issue. तो ये retrospective care हो गया ना, but for avoiding an issue, ये तो then आप बोल सकते हो कि you create an example, तो फिर से नहीं होगा. But how do you maintain कि in the first place that it doesn't happen? Because I'm ठीक sure है, चलो इसी पे मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो बिल्डिंग द कंसेप्ट, मैं तुम्हें 3 वर्ड और दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना कि पहला है प्रोएक्टिव, दूसरा प्रिवेंटिव, और तीसरा है ब्रेकडाउन। ऑल्दो ये 3 वर्ड हम लोग ऐसे मेंटेनेंस के टर्म में ज्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं इन मैनेजमेंट, बट तो इट इज थर्ड वर्ड क्या वैलिड। था सर? पहला है प्रोएक्टिव, सो थर्ड वर्ड. ब्रेकडाउन। ओके. तो जो अच्छा. तुमने बोला ना रेट्रोस्पेक्टिव, तो वो ब्रेकडाउन वाला के वो हो गया कि इट्स नॉट प्रिवेंटिव, इट्स अ मोर ऑन, जब रिपोर्ट हो गया तभी ये काम आएगा। नहीं, यही तुम कह रहे हो ना? राइट सर. सो हम्म. तो वी डोंट हैव प्रिवेंटिव नेचर और प्रोएक्टिव नेचर ऑफ दिस पॉलिसी। हम्म. तो Sir, और it's preventive only, no, sir. It's like it like it avoids like कोई भी like हाँ, rape or प्रिवेंटिव ये हो गया कि लोग rape or डरेंगे, something. मतलब पीपल विल फील स्केयर्ड। हम्म Deterrence हो जाएगा. That is the only way वो हाँ। होगा. But then there has to be correct translation of the policy in the sense that people will have to know about it, right? Because हम्म। Even if like it's like effective, it's only effective on the streets, but rape के cases कितने streets पे होते हैं? Most of them happen inside office buildings or houses or but in secluded this places. scenario the area that has been given is a metro, right? हाँ, So हाँ ना, in the so case of my a point metro, was इवन इन कि मेट्रो। अच्छा ठीक है, तो अगर मान लो कि इफ यू वांट टू असेस दैट वेदर दिस पर्टिकुलर मॉडल इज सक्सेसफुल और नॉट, इफेक्टिव और नॉट, तो ये एनालिसिस किया गया है किसी ने कि बिफोर सी टीम हैज बीन क्रिएटेड, बिफोर एंड आफ्टर, कितने मतलब रिपोर्टेड केसेस हैं? ये पढ़ा तुमने, कभी स्टडी किया? क्योंकि इफ इट इज अ सक्सेसफुल मॉडल, तो व्हाई वी आर नॉट डिमांडिंग द सेम फॉर अदर सिटीज? जब हम अपने अपने कंट्री के ही बेस्ट मॉडल को नहीं वो करेंगे, अडेप्ट करेंगे, तो फिर बाहर की अच्छी पॉलिसीज को कैसे अडॉप्ट करेंगे? तो किसने ये वो देखा था? हैव यू एवर रेड अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी? no, so I'm hearing about it for the first time. नहीं, किसी ने बताया, जिसने सजेस्ट किया ना, वो आई थिंक हाँ, I हैदराबाद suggested वाले। because I have heard and मैं इस सिटी से हूँ इसीलिए मुझे पता है। हाँ, Not like नेशनल मीडिया पे कभी तो तुम कवर तुम हुआ है। जस्ट टेक इट एज एन होमवर्क, नेक्स्ट टाइम उसको करके लाना।
अच्छा, ये Okay. तो हुआ कि वी वांटेड टू डू इट थ्रू गवर्नमेंट टीम, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी करंट मैं तुम्हें एक ऐसी रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि लेट्स से कि इफ यू वांट पीपल टू बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, पीपल, normal people, general people, to be part of this effort. Or I also want use of technology. तो क्या सोल्यूशन ले सकते हो? कुछ कुछ सोच के बताओ। कुछ टेक्नोलॉजी और लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, कैन यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दिस? Like, sir, can you be a little bit थोड़ा explain? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट आई एम सेइंग कि चलो सी टीम इज देयर, ठीक है, चलो उसको मान Hmm. लिए कि वो है। Hmm. यू स्टिल वांट समथिंग मोर टू डू। Okay, like maybe वो लोग क्या करते हैं, like I had a session in my engineering college back then. वो उसके पुलिस आके बोले थे कि लाइक उनका एक एक लोकली एक एक हैदराबाद के जोन्स के लिए एक एक अलग अलग व्हाट्सएप नंबर होगा। जब भी कोई परेशानी होगी या कोई भी छेड़ रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे लाइक वी कैन लाइक drop one text or like when you start वो call center type का है, when you start texting or something it will directly report to the police control room or something, जो nearest police होंगे वो लोग आपके लोकेशन देख के आपके पास आ जाते हैं। So, but this will also take more time. So basically, in Delhi also they tried to do this. There was an app also that the government tried to launch, but I don't know how effective that was. But there's an तो चलो emergency ठीक है, number. अब मैं आ गया ना जो, रुको। द प्रॉब्लम विथ सी टीम वाला कि वो टाइम का इशू हो सकता है। तो हम्म। Hmm. क्विक रिस्पांस टीम अगर है भी तो देर स्टिल दे में रीच लेट, और 30 मिनट्स 20 मिनट्स के गैप पे मच कैन हैपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? So higher deployment in such situations. Just say every time you go in the metro or something like that, you always have these officers, right? Who officers, sorry, constables who are a part of the infrastructural defense force. So they're always at the beginning of the metro station, right? So within these forces, there are a lot of women as well. So you can also create deployment of those particular defense personnel who are doing it तो for यही बात है ना, anti-terrorism यहाँ पे ये issue. प्रॉब्लम आ रही है ना कि आपके पास रिसोर्स इतने नहीं है ना। यू But कैन sir, नॉट within these डिप्लॉय। forces there are women also. तो आप women भी deploy कर सकते हैं ऑफ ऐसे कोर्स areas वुमेन भी में. डिप्लॉय कर सकते हैं, बट अगेन फोर्स कोई भी हो उसकी कॉस्टिंग होगी ना। Fair enough, ये भी हो हाँ। सकता है. तो तो उसको अगर मान लो टैक्सी कि कर वी स्टिल सकते हैं डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी, हम इस और वाले So बजट पार्ट को डजंट ना, higher, है। so सॉरी, higher surveillance भी बोल सकते हैं. That surveillance being connected to the nearest thana. So in case there is an issue, the nearest police station can be responsive if there is तो higher सर्वेलेंस भी तो surveillance. बहुत मुश्किल है ना, मतलब कैसे करोगे? हाउ Mm, यू डू इट? mm. So फिर वही surveillance बात also जाती है doesn't कि work. अच्छा, हम लोग सोच रहे थे एक बार, मतलब कुछ एक महीना पहले, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एंड इट वाज समथिंग लाइक कि देखो, देयर आर लॉट ऑफ individuals who are also against this. They want that they would also like to be the part of this. जैसे नहीं होता कि सफाई में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, या फिर बहुत सारी पॉलिसीज में लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी एक्सपेक्ट की जाती है और चाहते हैं कि हम करें, बिकॉज उससे स्वच्छ आपकी, भारत अभियान। हाँ, उस सब में। तो मैंने हम्म। अगर ऐसा बोला है कि जैसे मान लो कि हम लोग बैठे हुए थे एक जगह पे स्ट्रीट पे, और इफ देयर इज एन ऐप जो सिर्फ उसमें एक पैनिक बटन हो फॉर द वुमेन, और बाकी जैसे कई सारे लोग हैं दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन वॉच गार्ड, ठीक है, जिनके पास पता चले वेन एवर द पैनिक बटन इज बीइंग पोस्ट, तो नियर बाई लोगों को, मे बी 50 मीटर 100 मीटर तक के लोगों को के पास मोबाइल में बीप करे कि somebody इज इन ट्रबल, ठीक है, विद द डायरेक्शन,
क्योंकि ये सब पॉसिबल है, टेक्नोलॉजिकली दीज आर पॉसिबल। तो मान लो कि अगर किसी ने कोई यहाँ पे है एंड समबडी इज, मतलब डरी हुई है लड़की है, कुछ भी उसको लगता है कि आई एम बीइंग फॉलोड बाय समवन और परपेट्रेटर इज हियर, तो से पुश दैट बटन, तो बहुत सारे लोग हो गए। अब होता क्या है कि कई बार एक इंडिविजुअल जो है ऐसे केस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसको डर होता है कि प्रॉब्ली देयर वुड बी मोर पीपल, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं या फिर हमें कुछ हो जाए। बट सिंस द बीप इज बीइंग, वो ये इस पे कई सारे लोगों के पास पहुंचेगा एंड लॉट ऑफ पीपल विल अराइव टू दैट प्लेस, so everyone will have more guts or more, everyone will have confidence to intervene there. तो ये जैसे ऐसे ऐसे अगर टेक्नोलॉजी का यूज अगर हम करें एंड लेट्स इन्वॉल्व पीपल ऑल्सो, गुड पीपल, तो इस ये पॉलिसी हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Guard. That can be. So like a community watch guard, right? तो हाँ 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 अगर हमें पता है कि कम्युनिटी में ही है, बिकॉज हाँ आई कैन अंडरस्टैंड से इफ देयर इज एन इंसिडेंट, मैन और वुमन, आई प्रोबेबली वुडंट वांट टू गो, अगर मेरे को लग रहा है सर मैं ही हूँ तो मेरे को ही कुछ ना हो जाए, तो आई मीन हाँ विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो अगर कम्युनिटी वॉच गार्ड होगा थ्रू एनी काइंड ऑफ पैनिक बटन, देन एंड ऑल्सो दिस इज चीपर, right? हाँ Because once the community has come, that means there is, if there is any contact issue, that can get broken, and then the police can get involved eventually, like हाँ, something like a और she ये team क्विक रिस्पॉन्स होगा can get क्योंकि involved. नियर बाय एवरीवन विल गेट दैट बीप। Yes. तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। तो मेरा पॉइंट है कि आज के टाइम में व्हेन यू विल बी गोइंग टू पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स, दे विल बी टॉकिंग अ लॉट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर वे टू डू द थिंग्स। मतलब इट शुड नॉट बी जस्ट अ गवर्नमेंट वे कि टॉप टू डाउन नहीं। सो लेट्स इन्वॉल्व पीपल, लेट्स फाइंड रिसोर्सेज। जैसे अभी क्या हुआ कि मैं तो बताता हूँ, कुछ कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल ने वो किया कि दे वांटेड टू मेक देयर स्कूल सिस्टम इफेक्टिव। तो उन्होंने बोला कि जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, दोज हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, they can act as an career counselor. They have to register on a portal, and school will call you or assign students to you so that you can guide people. तो ये आई डोंट नो कितना इफेक्टिव था, बट दिस वाज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन दे केम अप विथ। ठीक है। सर चैट में एक केस स्टडी शेयर किया है उसी शी टीम का, मिला है इंटरनेट में। हाँ, मैंने उसको डाउनलोड तो किया ना अभी। क्या था उस, एक सेकेंड। एम्पिरिकल स्टडी है तो ये सर ठीक है। शी टीम तो बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत हाँ ही मतलब, इफेक्टिव। हाँ मतलब इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव है, और कैन वी हैव मोर इफेक्टिव सिस्टम, ये वाली बात हो रही है यस, ना। ओके। So whatever is the best right now, that may not be the best, for absolute best, है कि नहीं? यस सर, यस सर। So I'm not against C team. I'm just saying कि can we make it more effective? या है ना? इट्स नॉट उसका लूप यही है कि वो आउटस्कर्ट्स में या कुछ लाइक, अगर दिल्ली में कोई है उसको लाइक गुड़गांव में ये काम नहीं करेगा। सिमिलरली इन द हैदराबाद आल्सो, इफ लाइक 1-2 साल पहले किसी का मर्डर एंड रेप हुआ था, कोई वो नाइट में आउटस्कर्ट्स में जा रही थी, उसको कुछ हेल्प भी नहीं मिला बिकॉज शी वाज इन आउटस्कर्ट। वैसा कुछ नेशनल केस हो गया उनका। हाँ, मैं समझ गया। लेकिन वो जो दिल्ली और गुड़गांव वाली बात की, तो अगर वो वाली टेक्नोलॉजी पे बात करें तो दैट कैन हेल्प इन इवन गुड़गांव, क्योंकि वो तो स्टेट स्पेसिफिक है नहीं। ये तो इट्स ऑन चॉइस हाँ कि आप अपने मोबाइल पे रखना चाहते हो कि नहीं।
जो जैसे मान लो कि मैं अपने मोबाइल पे रखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व वेन एवर आई फाइंड दिस सिचुएशन, तो आई विल कीप दैट। और हो सकता है कि और सिचुएशन में ना भी जाऊं, लेकिन ऐसे 50 लोगों के पास बीप हो रहा है तो 10 लोग जाएंगे भी ना। हम्म तो अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इट विल वेरी ये कि मैं तुम्हें पीछे ले जाऊं, बट पहले क्या भी बच्चों से हम पूछते थे तो वो लोग ऐसे, कभी विमेन सेफ्टी की बात होती थी तो वो कहते थे कि माँ बाप को बच्चों को समझाना चाहिए, अपने मेल चाइल्ड को, टू रिस्पेक्ट वुमेन, है ना, ऐसा बताते थे। तो ये कोई पॉलिसी सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हम्म मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट किसी माँ बाप को क्यों बोलेगी, और कोई माँ बाप क्यों कंप्लाई करेगा इस बात को लेकर? But sir, like, I think recently, since a decade or something, हमारे undergrad colleges में we have some like credit course, हाँ, gender sensitization. वो बिल्कुल पॉलिसी का पार्ट हो सकता हाँ, है ना। वी आई वॉज कमिंग टू दैट ऑल्सो, कि आप अब स्कूल करिकुलम में, कॉलेज करिकुलम में कुछ एक मैंडेटरी पार्ट लगा दो, समथिंग दैट एवरीवन शुड नो। तो आपका ग्रेजुएशन का अगर 80 क्रेडिट्स है, इन जनरल ग्रेजुएशन में 120 क्रेडिट होता है, तो 120 क्रेडिट का आपका है, तो जस्ट मेक इट 130 क्रेडिट, और 10 credit for such courses which is to sensitize the graduate for different national issues, and one of them would be women issues, नहीं? हम्म तो environment हो गया, इकोलॉजिकल, तो इसमें हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसमें बताया जाए, और मेक इट मैंडेटरी कि आपको इसका एग्जाम पास करना होगा, वाइवा भी पास करना होगा। तो जाहिर सी बात है, वो भी किया जा सकता है, दैट कैन बी अ पॉलिसी सोल्यूशन। बट ये एक्सपेक्ट करना कि माँ बाप बोलेंगे बच्चों को, दिस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेबल और एग्जीक्यूटेबल। समझ में आई बात? but Yes, sir. mostly people learn from childhood and home only, no sir. It's like एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ जिस कि घर में डोमेस्टिक अब्यूज होगा या डोमेस्टिक वायलेंस होगा, मैं उसी समझ घर गया, के बच्चे जाके बड़े होके ऐसे क्राइम करते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन ये पॉलिसी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन स्कूल में लाइक देर देर इज लाइक रिसेंटली कुछ विस्पर का या कोई एड था जहाँ पे लाइक ऑल द लाइक मेंस्ट्रुअल एजुकेशन विल बी गिवन टू स्कूल में ही, बच्चों को बेसिक चीजें 4th या 5th क्लास में पढ़ाया जाता है। हम्म। वैसे ही कुछ स्कूल में बेसिक एक सब्जेक्ट रखे मैं या वही तो मैं बोल रहा सेमिनार हूँ रखे। कि वो बिल्कुल पॉलिसी का पार्ट हो सकता है। दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी, मतलब एक कंपोनेंट ऑफ पॉलिसी हो सकता है। तो जैसे कभी हम पॉलिसी बनाते हैं ना, तो वी ऐसे सच इस पे प्रॉब्लम्स में, तो वी डोंट मेक वन सिंगल सोल्यूशन, है ना। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ना मल्टी प्रोंग्ड सॉल्यूशन। मल्टी प्रोंग का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लाइक नहीं, मल्टी डिफरेंट प्रोंग डायरेक्शन। मतलब बहुसूत्री योजनाएं। तुमने नहीं सुना हिंदी में कभी? मल्टी प्रोंग्ड स्कीम, बहुसूत्री योजनाएं उसको बोलते हैं हिंदी में। लाइक एग्जाम्पल्स। मतलब जैसे, अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे तुमने वुमेन सेफ्टी के लिए एक एक स्कीम बनाया सी टॉक का, फिर तुमने बोला कि इससे काम नहीं चलेगा, वी हैव टू सेंसिटाइज ऑल्सो, ठीक है। तो तुमने बोला कि एक हमारा एडवर्टीजमेंट का भी होगा, ठीक है, फॉर एडल्ट पीपल। फिर हमने बोला कि स्कूल से भी हमें करना है। तो फॉर द सेम प्रॉब्लम वी आर, मतलब वी आर ट्राइंग टू पुश सोल्यूशन एट डिफरेंट लेवल, एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, है ना, एंड दे रिक्वायर अदर गवर्नेंस बॉडी टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। क्योंकि सी टॉक में लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व होगा, एडवर्टीजमेंट में जो कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, स्कूल एजुकेशन में डालना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन्वॉल्व करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो जो जनरली जो सरकार क्या करती है, जब भी एक पॉलिसी बनाती है, तो दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज,
Sir, implementing is for this, can we take an example of that? Road safety के लिए they have implemented wearing of helmet schemes, जहाँ पे ads भी चलाया, government fines भी लगाई, government ने education मतलब like educate किया public को. तो उसमें तो एक ही, हाँ उसमें वो भी बहुत सूत्री है, बट उसमें एक ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी काम करेगी ना। वो तो ट्रैफिक वाले को ही दे दिया गया कि आप ही करो सारा। हम्म. समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो ये वाला सोल्यूशन है, इसमें तो अलग अलग डिपार्टमेंट से भी आर एक्सपेक्टिंग अलग अलग टाइप का वो ना कंट्रीब्यूशन। तो इसमें सो क्या। मेरा एक डाउट था. हम्म। So, when we are given pose such a question in the exam, I doubt that they will give such a broad understanding just of just women's safety, right? जैसे आपने initially zero down किया था कि metro में women's हाँ। safety. So, if we are posed such a specific question, then I don't see how we need to move into education of adult people. I understand advertisements and all that, but हाँ, मैं because वो of the तो paucity बिल्कुल, of ये तो time. एजुकेशन और एडल्ट लर्निंग का ना वो उसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना। हाँ जी, so in that moment, because एक तो we have also a paucity of time and we also नहीं need नहीं, to make वो our डालना ही नहीं है, policy. उसको डालना ही नहीं है सोल्यूशन में। हाँ अगर जी, आप, हाँ जी. हाँ आप उसमें लिखना भी है तो आप ये लिख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में ये, लॉन्ग टर्म में हम ऐसा कर सकते हैं, Okay, understood, sir. है ना। तो जब भी जैसे कोई क्विक रिस्पॉन्स है, तो अब आप ये नहीं बोलोगे ना कि हम पूरे सोसाइटी की थॉट को पहले चेंज करेंगे, हम्म. है ना। अब जैसे वुमेन राइट्स है या फेमिनिज्म है या एनी सच इशू, कास्टिज्म है, या कम्युनल हार्मनी है, या फिर स्टेट राइवलरी है, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे अगर कभी मतलब एक तो होता है ना, हाँ ये भी मैं तुम्हें पहले भी बताया होगा कि कई बार जो सोशल इश्यूज या इश्यूज जो होते हैं ना, दे आर नॉट पॉलिसी इश्यूज। वो बहुत दिनों तक तो गवर्नमेंट इग्नोर ही कर रही होती है कि चलो ठीक है रहने दो, मतलब अनटिल अनलेस दे डोंट फाइंड इट एज अ बैरियर टू नेशनल डेवलपमेंट, तब तक पॉलिसी इशू बनाते ही नहीं है। समझ रहे हो? Right, sir. हाँ, तो हमने कभी इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कई बार हम लोग कि, और कई बार वो भी पूछते हैं कि डू यू नो एनी सच social issue या issues with which is there and which is not yet policy issue, and you, from your point of view, there must be a policy regarding this। तो तुम्हारे पास है, किसी के पास है यहाँ पे कुछ ऐसा? तो जब सोशल इश्यूज, व्हेन इट बिकम्स बैरियर टू नेशनल डेवलपमेंट, व्हेन इट इज बिकम टॉक ऑफ द टाउन एक तरह से, कि एवरीबडी इज आस्किंग टू इंटरवीन, फ्रॉम इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, तब ये पॉलिसी इशू बनता है। Sir, और it तब could be फिर like can it could be like government should central government should limit the freebies of the state governments. नहीं, ये तो बहुत, इस पे तो हम अभी बात कर लेते हैं, रुक जाओ। नहीं, वो सोशल इशू है लेकिन पॉलिसी इशू नहीं है. नहीं, वो सोशल इशू नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट फ्री भी देती है, इट्स अ राइट ऑफ गवर्नमेंट, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ले, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। हाँ, लेकिन उनके लाइक उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे वो ज्यादा वेट ऐड करती ना. हाँ मैं समझ गया, लेकिन समझो एक बात को कि गवर्नमेंट अर्न भी तो कर रही है ना। तो अब अगर गवर्नमेंट जो है लोन लेके अगर आपको प्रोवाइड करती है कुछ, अब जैसे तुम, हम्म. मैं ये समझो, जैसे 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 kg ऑफ फूड ग्रेन, हम्म. तो वो भी तो फ्री भी है। No, not like that, but ये free buses run, like they have been अच्छा, running तो free buses, you अच्छा know. एक बात बताओ, व्हेन यू से दैट इफ समवन कैन पे, है ना, हम्म. तो आप अब कुछ दिन बाद गवर्नमेंट ये बोले कि आप जो है पॉल्यूशन पे हमने बहुत सारा काम किया है, ठीक है, सो यू शुड ऑल्सो पे फॉर फ्रेश एयर। आप पॉल्यूशन हमने कंट्रोल किया, तो जिस सिटी में पॉल्यूशन कंट्रोल्ड है आप 10 रुपया पर मंथ दो, तो विल यू मतलब एग्री फॉर दैट? नहीं ना। हम्म. तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोवाइड समथिंग टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑल्सो। जैसे सरकार एजुकेशन, जैसे एजुकेशन है वो फ्री देती है,
किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया कि आप एजुकेशन फ्री क्यों देते हो? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के बच्चे जाते ही नहीं है उस स्कूल में। हम्म अब अगर रिस्ट्रिक्ट कर दे सरकार कि प्राइवेट स्कूल चलेगी ही नहीं और गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना है, तो आपको लगेगा कि फ्री तो पढ़ा रहे हैं लेकिन ये तो सही पढ़ा ही नहीं रहे। इसी तरह से हम्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे प्रोवाइड फ्री हेल्थ फैसिलिटीज। ज्यादातर चीजों के लिए बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, 5 रुपए 10 रुपए, दवाई भी फ्री मिलती है। तो वहां तो आपने नहीं क्लेम किया कि वो क्यों फ्री दिया जा रहा हम्म है ना? तो हम्म इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी जो फ्री दिया जा रहा था, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट फॉर दैट। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया था कि देयर वाज अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर, मतलब वो फ्री के लिए कि 200 यूनिट तक ही आपको फ्री मिलेगा। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट यू हैव टू पे फॉर द एंटायर बिल। समझ रहे हो? हम्म तो तो फ्रीबीज के लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही हो गया। हम जो बात कर रहे थे कि एनी ऑफ इस सोशल इश्यूज विच इज नॉट पॉलिसी इशू येट बट यू थिंक इट शुड बी, ऐसा कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आता है? सर एल्डर केयर, कौन सा? सर एल्डर केयर, सर एजिंग पॉपुलेशन का। एल्डर केयर पे तो आया है ना, मतलब उस पे तो पॉलिसी बना है अभी कुछ दिन पहले। ओ, कुछ और बताओ। सर अभी एक